आवाज नहीं आ रही है बच्चों। अस्सलामु अलैकुम। गर्ल्स की नहीं आवाज आ रही है। ऐसा लगता है मेरे स्कूल में गर्ल्स नहीं है। गर्ल्स की भी आवाज आनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। लग रहा है कि आज एक्साइटेड हैं आप आपके एनुअल फंक्शन के लिए। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड। नाउ आई हैंड ओवर माई माइक टू माई एंकर्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट कर। चल वापस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good evening, ladies and gentlemen. The galaxy of intellectual of excellency. सांस फूल रही है। बोल रहे स्टार्ट रखना। बोलना रे प्लीज। तुम सांस फूल। माइक अंदर ले लो ना। नहीं। The galaxy of intellectual excellency invited guests, teachers, and my dear friends. I am Shahida Khan. I am Musarrat Khan. Respected guests, how different is this meaning you will yourself discover as the colors for this event unfold. Greeting to on and all present here. I am extremely privileged to have this सर इधर जाए। सांस फूट गई। Good evening, ladies and gentlemen. The galaxy of intellectuals, Your Excellency, invited guests, teachers, and my dear friends. Respected guests, how different is this evening? You will yourself discover as the colors of this event unfold. Greetings to one and all present here. I am extremely privileged to have this opportunity to address you at this important moment of celebrating our third annual day today. It is an honor for me to deliver my welcome speech for annual function. Today's children are the future of our state as well as our country. I am feeling proud in saying that the talent they have displayed here today is sufficient to say that they have the potential to become worthy citizens of our society. Education is about far more than what happens within the four walls of our class. Undoubtedly, we are very fortunate to have such teachers, trainers, and instructors who recognize this. If this infrastructure and teachers are the two resources available to the school, then definitely the students are the third ones. Let's seek these blessings for the day. His light be with us till the end of the day. Let him make us wise, pure and gay. From sin and vices keep us away. The workday or life cannot be started without Allah's name, who is the creator of the universe, who is worthy of all the praise. So I will invite Isaac
of class 3rd to recite some verses from the Holy Quran and give us a noble start of today's event. Please come on the stage for the recitation of the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, Jazakallah for your performance. As we begin this blessed gathering, let us turn off our hearts toward Allah in praise and gratitude. To set a spiritually uplifting tone, I invite Sumaya to the stage to recite a beautiful hymn in honor of the Almighty. May these words fill our hearts with faith and peace. Please welcome Sumaya with a warm round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। जिसको चाहे गदा कर बना दे, जिसको चाहे तू तख्त पर बिठा दे।
मालिक यकता, तुझसा कोई कहाँ या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, देने वाला है तू मेरा अल्लाह, सुनने वाला है तू मेरा अल्लाह। तू है सबसे आला, तू है सबसे बाला या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तुझको कोई भी यकता न माने, ये हकीकत वो लोग जाने। आग उनकी सजा होगी रोज जजा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, को तूने पानी में मछली को पाला, तूने पत्थर से कीड़ा निकाला। तू है सबसे बड़ा, तू है सबसे जुदा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा या इलाही। तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Subhanallah, that was a truly beautiful and soul-stirring recitation. I had felt thank you, Sumayya, for their inspiring hymn, reminding us of the greatness and mercy of Allah. May Allah bless you and reward you for your efforts. Let's all give them another round of appreciation. अब इसके बाद मैं हाफिज अब्दुल हमीद उस्मानी साहब को दावत दूंगा कि वो आके एक नात पेश करें। हाफिज अब्दुल हमीद उस्मानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनिवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है, अनिवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है, वो शम्अ ज़माने में बुझने नहीं पाई है। सुन्नते के सितारों को, सुन्नते के सितारों को आँखों में सजा कर चल, बिदअते का अंधेरा है और शिर्क की खाई है, बिदअते का अंधेरा है और शिर्क की खाई है।
अनिवार्य रिसालत से लो जिसने लगाई है। हम बुलबुल शैदा है, हम बुलबुल शैदा है, गुलज़ारी मोहम्मद के सैयदी तड़पो जाए वो नग़मा सराई है। सैयदी तड़पो जाए वो नग़मा सराई है। दुश्मने को इजाज़त है, दुश्मने को इजाज़त है, आकर के वफ़ा सीखे। ये महफिल उल्फत है, नफ़रत से लड़ाई है। ये महफिल उल्फत है, नफ़रत से लड़ाई है। गुलज़ार के फूलों ने, गुलज़ार के फूलों ने जलने की अदा सीखी। क्या शोला बयानों ने ये आगे लगाई है। क्या शोला बयानों ने ये आगे लगाई है। अनिवार्य रिसालत से लो जिसने लगाई है। खुशबूए अक़ीदत से, खुशबूए अक़ीदत से मसरूरी हुई महफिल। खुशबूए अक़ीदत से मसरूरी हुई महफिल। क्या खूब हिजाज़ी ने ये नाते सुनाई है। क्या खूब हिजाज़ी ने ये नाते सुनाई है। अनिवार्य रिसालत से लो जिसने लगाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakallahu khairan wa hasanul jaza. Now I request my anchors. Ladies and gentlemen, as we gather here for this special occasion, it's time to witness a powerful and captivating performance. Get ready for an exciting presentation of Khusham Deed, a welcoming action drama that will set the stage of an unforgettable experience. Let's welcome the performers with a big round of applause. Please welcome, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभी लोग थोड़ा आगे पीछे नहीं।
सहलन आफरी खुश आमदी खुश आमदी ए तालिबे इल्मो यकीन खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन आफरी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन मरहबा ए तालिबे फहमो ज़का Wow, what an incredible performance. Thank you to the talented cast and crew of Khush Amdeed for delivering such a powerful and drama. Your hard work and dedication truly brought the story to life, making this event even more special. Ladies and gentlemen, get ready for mesmerizing performance that will touch your hearts. Presenting a soulful rendition of Dil Na Kisi Ka, performed by primary section. Let's welcome them on stage with big round of applause. Please तालियों के साथ स्वागत कीजिए. बोलना पड़ता है. करो नेक बनने का तुमको अगर
वक्त बेजा असर मत गवाया करो, भूल कर भी ना काबे को ढाया करो। दिल किसी का कभी मत दुखाया करो, भूल कर भी ना काबे को ढाया करो। दिल किसी का कभी मत दुखाया करो, भूल कर भी ना काबे को ढाया करो। Absolutely stunning performance. A big thank you to primary section for their beautiful rendition of Dil Na Kisi Ka. Your talented and passion have truly moved us all, and we are grateful for this unforgettable moment. Let's all give them another round of applause to show our appreciation. Ladies and gentlemen, as we reflected on the core values of our faith, it is time to witness a performance that highlights the essence of Bunyadi Islam. This presentation will take us on a journey of faith, knowledge and inspiration. Please welcome them on stage with a warm round of applause as they share this meaningful performance with us. पेरेंट्स आपसे गुजारिश है प्लीज वीडियो बनाने के लिए आगे मत आए, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पेरेंट्स प्लीज आगे आके आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों को, तो प्लीज आप अपनी जगह से वीडियो बनाएं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا، أطهر بدني بصلاة، بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي، أطهره برضا الله، للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة
وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़र में वो इंसान चमकता है। That was a wonderful performance. Please appreciate them with a big round of applause. Ladies and gentlemen, it's time for a performance that will take us on a journey of emotions and reflection, presenting a mesmerizing act on Zami Ko Dekha, performed by higher section girls. Let's welcome them on stage with a big round of applause. प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। मौला 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 ज़मी को देखा फलक को देखा खुदाया हर जा तुझी को पाया कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया ज़मी को देखा फलक को
तुझी को पाया। कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। ये शाम सुबह का आना जाना, ये फूल कलियों का मुस्कुराना, ये मंजरों मौसमे सुहाना, सुबह में चिड़ियों का मुस्कुराना, किसी का आना किसी का जाना, बदलते मौसम है और जमाना। जमीन में पस्ती फलक सुहाना, कभी है बादल का आशियाना, ये चाँद सूरज का जगमगाना, फलक पे तारों का टिमटिमाना। हर एक मंजर जिसे भी देखा वही खुदाया तुझी को पाया, तुझी को पाया, तुझी को पाया। ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया, हर जा तुझी को पाया। कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया, हर जा तुझी को पाया। कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। किसी ने पाई कमाल इज्जत, किसी में देखी तो सिर्फ जिल्लत, किसी को जिल्लत के बाद इज्जत, किसी को इज्जत के बाद जिल्लत। अजीब अनबार नसीम खिलकत, कोई रज़ीलो सलीम फितरत, किसी में उल्फत किसी में नफरत, किसी में चाहत किसी में वहशत, किसी का शेवा फकत मोहब्बत, कोई बना है मरीज नफरत। जिसे है ज़ेबा तमाम इज्जत, मौला महाला तुझी को पाया, तुझी को पाया, तुझी को पाया। ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया, हर जा तुझी को पाया। कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया, हर जा तुझी को पाया। कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। खुदाया तेरी न इब्तिदा है, न तेरी कोई भी इंतहा है, तेरी तो काफिर पे भी अता है, गरीब थे पर तेरी सखा है। कोई न माने या मानता है, सभी का सिर्फ एक तू खुदा है। मैं हूँ गदा पर तू बादशाह है, फरेब है जो तेरे सिवा है। मेरी हमेशा बस एक दुआ है, मैं खुश रहूं जो तेरी रजा है। दुआएं पूरी अताएं पूरी है करने वाला तुझी को पाया, तुझी को पाया, तुझी को पाया। ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया, हर जा तुझी को पाया। कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। ज़मीं को देखा फलक को देखा खुदाया, हर जा तुझी को पाया। कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक ये खामोश फिजाएं। है कोहे सहरा ये समुंदर ये हवाएं, थी पेश नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं। आए ना अय्याम में आज अपनी अदा देख, ऐ पैकर गुल कोशिश पैहम की जजा देख। What a breathtaking performance! Thank you to higher section girls for their incredible presentation of ज़मीं को देख. Your talent and dedication truly brought the emotions of this piece to life, leaving a lasting impact on all of us.
Ladies and gentlemen, as we continue this enlightening gathering, it is essential to reflect on the importance of pure faith in Islam. Today we have an institutional speech of the topic, Gairullah ki qasam khana shirk hai, a reminder of the significance of oath taking in Islam and our devotion to Allah alone. To share valuable knowledge on this topic, please welcome Ruqayya to the stage with a warm round of applause. पेरेंट्स, आप हमारे बच्चों का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस्तेकबाल कीजिए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। पेरेंट्स, आपके तालियों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है गैरुल्लाह की कसम खाना शिरक है। जो लोग गैरों की कसम खाते हैं तो ऐसे लोग ये जान लें कि ये शिरक है। हजरत सअद बिन उबैदा से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक आदमी को काबा की कसम खाते हुए सुना तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी और की कसम ना खानी चाहिए, इसीलिए कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन हलफ लिगैरिल्लाहि फक़द औ अशरक। जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई, यानी जिसने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई, तो उसने कुफ्र किया, शिर्क किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कुल्लु यमीनिन बिहा दूनल्लाहि शिर्क। अल्लाह के सिवा किसी भी तरह की कसम खाना शिर्क है। जनाब सुलेमान इब्ने बुलैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन हलफ बिल अमानति फलैसा मिन्ना। जिसने अमानत की कसम खाई वो हम में से नहीं। इन हदीसों से ये मालूम होता है कि अल्लाह के अलावा दूसरों की कसम खाना हराम और ममनू है, और अगर कोई गैरुल्लाह की कसम खा ले तो कफ्फारे के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने लाता व उज़्ज़ी यानी जिसने बातों की कसम खाई तो वो कफ़ारे के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खबरदार रहो, अल्लाह तुम्हें अपने बाप दादाओं की कसम खाने से मना करता है। अगर किसी को कसम ही खानी है तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए, वरना चुप रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम खाया करो और अल्लाह की कसम भी उस सूरत में खाओ जब तुम सच्चे हो। सुनन अबू दाऊद निसाई हदीस नंबर 3248, सुनन निसाई किताबुल ईमान हदीस नंबर 3800। यह हदीस सही है, इसीलिए मुसलमानों अल्लाह की कसम खाओ जब तुम सच्चे हो, वरना नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। पेरेंट्स, तालियों की कमी लग रही है मुझे। जोरदार तालियों से हमारे बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। Jazakallahu khaira. A sincere thank you to Ruqayya for delivering such an thought-provoking speech on this important topic. Your words have truly deepened your understanding of the significance of keeping only for Allah. May Allah bless you for knowledge and efforts. Let's show our appreciation with a warm round of applause. Respected elders, dear brothers and sisters in Islam, death is a reality that no soul can escape. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Kullu nafsin zaiqatul maut. Every soul shall taste death. Surah Al-Imran, ayat number 185. Today we have among us beloved speaker Aisha, who will inshallah remind us of this reality and inspire us to return to Allah before we return to Him. Let us welcome her, Aisha. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला
फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सामईन किराम, हाज़रीन मजलिस, मौत जरूर आएगी, किसी भी जी रूह को उससे छुटकारा नहीं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सांस लेने वाले को मौत का मजा चखना है। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालिल वल इकराम। ज़मीन पर जो है सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो आज़म इज़्ज़त वाली है वो बाकी रह जाएगी। अगर कोई शख्स मौत से छुटकारा पाता तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाते, लेकिन आपसे भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन खुद आपको भी मौत आएगी और सब मरने वाले हैं। मेरे भाइयों, मौत के बहुत सारे असबाब होते हैं, जैसा कि कोई अगर जलकर या कुचलकर या डूबकर या छत पे से गिरकर मरता है तो अपनी मुकर्रर मुद्दत पर ही मरता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। हर उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब मौत का वक्त आ जाएगा, ना तो एक घड़ी देर कर सकेगी ना एक घड़ी जल्दी। इसी तरह किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि उसकी मौत कब और कहाँ और किस जमीन में होगी, और ना तो कोई बता सकता है। अगर बताने का दावा करे तो वो झूठा है, क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ गैब से है और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। किसी को ये मालूम नहीं है कि उसकी मौत कब और कहाँ आएगी। मेरे भाइयों और बहनों, जान के वक्त आदमी पर क्या गुजरती है, कैसी तकलीफों से दो चार होता है और उसे बाहर से कोई महसूस नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, जब मौत का वक्त आ जाएगा तो किसी को इस बात का इल्म नहीं रहेगा कि उसकी मौत किस तकलीफ से गुजरेगी, और वो तकलीफ हर शख्स को झेलना है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के वक्त भी बहुत ही तकलीफ हुई थी। सही बुखारी की रवायत है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के वक्त आपके सामने एक प्याला रखा था जिसमें पानी था, जिस पे आप अपना हाथ डालते और अपने चेहरे पर मलते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकारातुन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बिलाशुबा मौत में बड़ी तकलीफ है। मेरे भाइयों, जो शख्स जिस चीज को ज्यादा करेगा वह चीज से उसको मोहब्बत हो जाएगी। जैसा कि मुजाहिद रहमतुल्लाह का फरमान है कि एक शख्स के वाकया है जो शतरंज खेलने वालों में से था। जब उसकी मौत का वक्त आया तो लोगों ने कहा, मेरे भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। उसने कहा शाहिद, फिर मर गया, क्योंकि वो कहने की आदत उसके खेल के सिलसिले में थी और उसके दिमाग में वो बात गालिब हो गई थी। इसी तरह एक शख्स के बारे में है जो शराब की मजलिस में बैठा करता था। जब उसकी मौत का वक्त आया तो लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। उसने कहा पियो और मुझे भी पिलाओ, फिर मर गया। इसी तरह एक शख्स के बारे में है जो लोडिंग का काम करता था। जब उसकी मौत का वक्त आया तो लोगों ने कहा मेरे भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, लेकिन वो हर समय अपने मालों को गिना करता था, 1 2 3। जब उसकी मौत का वक्त आया तो लोगों ने कहा मेरे भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। उसने कहा 1 2 3, फिर मर गया, क्योंकि उसकी वो बात उसके ज़हन में बैठ चुकी थी। इसी तरह एक शख्स के बारे में, कुछ लोग गाड़ी में सफर कर रहे थे, अचानक रास्ते में हादसा हो गया, कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जख्मी हो गए। उनकी हालत नाजुक होती चली जा रही थी। लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। उन लोगों ने कहा, पर उनके गाने का मतारा बार बार दोहराने लगा। हुआ ये था कि जब वो लोग गाड़ी में सफर कर रहे थे तो रास्ते में गाने गेस्ट सुन रहे थे, इसी वजह से उनके दिमाग में वो बात गालिब हो गई थी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं अपनी शेर पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। ए मौत तू तब आना जब मैं सजदे में रहूँ, ए मौत तू तब आना जब मैं सजदे में रहूँ, तुझे आने में मज़ा आए और मुझे जाने में मज़ा आए।
आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और मौत की हकीकत जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala who grant us knowledge and wisdom. Thank you to Aisha. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you immensely for your powerful and thought-provoking words. Ladies and gentlemen, respected guests and dear children, language is a powerful gift, a reflection of our identity and a bridge that connects hearts. It is through words that we express love, wisdom and respect. But with great power comes great responsibility to use our words wisely. That kindness and sincerity to shed light on the importance of Zuban ki hifazat. We now invite young and talented speaker Sheba Shadaf to share their thoughts. Please welcome them with a big round of applause. Sheba Shadaf. Parents, please, applause का मतलब है तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पेरेंट्स, आपकी तालियां कम पड़ रही हैं, प्लीज तालियों से हमारे बच्चे को हौसला अफजाई कीजिए। जुबान की हिफाजत इस तरह करो कि जुबान की हिफाजत इस तरह करो जिस तरह ईमान की हिफाजत की जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सदर मोहतरम, हाज़रीन मजलिस और मेरे अजीज साथियों, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है ज़बान की हिफाजत। क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। जुबान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। मेरी प्यारी बहनों, जुबान हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो बेजाए तो इंतहाई छोटा मालूम होता है, मगर हकीकत में इस एक जबान से इंसान फलाह कामरानी से भी हमकिनार हो सकता है और तबाही और बर्बादी से भी दोचार हो सकता है। इसी जबान के बदौलत बिखरे रिश्ते जुड़ जाते हैं और इसके घर सबबाबाद वीरान हो जाते हैं। जबान की इसी अहमियत के पेश नजर में हमारी शरीयत में इसकी हिफाजत पर बड़ा जोर दिया गया है। यहाँ तक कि जुबान से लान तान करने वालों के ऊपर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बर्बादी और वेल लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। इतना ही नहीं, जबान की हिफाजत को निजात से ताबीर किया गया है। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आकर अर्ज करने लगे कि निजात हासिल करने का क्या तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जुबान को काबू में रखो, इसमें तुम्हारी निजात है। एक दूसरी हदीस में तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शख्स ने जन्नत की जमानत दी है जो अपनी शर्मगाह और जबान की हिफाजत की जमानत दे। किसी ने क्या खूब कहा है, जबान की हिफाजत इस तरह करो, जबान की हिफाजत इस तरह करो जिस तरह ईमान की हिफाजत की जाती है। मेरी प्यारी बहनों, इतना ही अफसोस की बात है कि जबान की हिफाजत जिस कदर ताकीद हमारी शरीयत में हम औरतों में मुताल्लिक इतने ही ज्यादा गफलत है। सबसे ज्यादा जबान तराजी, चुगलखोर, गिबत और इल्जाम तराशी में औरतों को नाम ही आता है। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वर्स में फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा देखा है। एक औरत पूछ बैठी कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्योंकि तुम औरतें लान तान में बहुत आगे हो, दूसरे अपने शोहरों की नाशुक्री हद से ज्यादा करती हो। मेरी प्यारी बहनों, आज हम औरतें की कोई ऐसी मजलिस नहीं होती जहाँ दो चार औरतें इकट्ठी हो, किसी की गिबत न हो, किसी की शिकायत न हो, किसी की ऐबजोई न हो। याद रखिए मेरी बहनों, अगर आप किसी की कोई बुराई पीठ पीछे करती हैं, अगर चाहे वो
बुरा इसके अंदर मौजूद हो तो उसका नाम गीबत है। कुरान मजीद में सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाता है, एक दूसरे की गीबत ना क्या करो। क्या तुम में से मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? यकीनन उसको तुम ना पसंद करोगे। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने किसी गुलाम को बुरा भला कह दिया, उसके कुछ बुराइयां बयान कर दी। बाद में जब कुछ खाने की चीज आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर तुम तो खा चुके। उन्होंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल मैं तो कुछ नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अपने मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाया, इसकी गिबत नहीं की। मेरी प्यारी बहनों, इस वाक़या से अंदाजा लगाए कि गिबत कितना खतरनाक गुनाह, कितनी हौलाक बुराई है। गिबत के अलावा ज़बान से की जाने वाली एक और आम बुराई झूठ। झूठ बोलना आजकल एक आम आदत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया, पूछा गया मोमिन बुज़िल हो सकता है। आपने फरमाया, पूछा गया मोमिन झूठा हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, पूछा गया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वालों को जहन्नम का रास्ता दिखलाने वाला बतलाया है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि नबुव्वत से पहले आपने कभी झूठ नहीं बोला। यही वजह है कि सारा मक्का आपको सादी को आमिर से याद करता है। अब मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें अपनी ज़ुबान और झूठ और दीगर बुराइयों से महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुबान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज्यादा मुश्किल है। हम दौलत की हिफाजत तो करते हैं लेकिन जुबान की हिफाजत नहीं करते। MashaAllah, what a beautiful, meaningful speech. May Allah guide us all to use your words with wisdom and kindness. Jazakallahu khairan. Ladies and gentlemen, boys and girls, get ready for a delightful performance that is sure to bring a smile to our faces. Teapots may seem like simple kitchen items, but today our little stars are going to bring them to life in the most adorable way. So let's give माशाल्लाह माशाल्लाह। पेरेंट्स प्लीज, इतने छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे आते, प्लीज उनके लिए तालियां तो बनती ही है। जोरदार तालियों से हमारे बच्चों का इस्तेकबाल कीजिए। माशाल्लाह।
little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, hear me shout. Tip me over and pour me out. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, hear me shout. Tip me over and pour me out. वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन. एटलीस्ट प्लीज हमारे बच्चों के लिए क्लैपिंग तो बनती है. आप लोग को बोलना पड़ रहा है, छोटे बच्चों है. वेरी गुड. वाट लगा देगा सब. आपको समझ में नहीं आता कैसे कुछ बोल रहा है. Wow, that was absolutely adorable. A big round of applause for our little stars who just filled the stage with joy and energy. Respected guests, dear parents and lovely children, today we are about to witness something truly special, a beautiful action drama presented by our little stars, reminding us of one of the most important teaching of Islam, gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, if you are grateful, I will surely increase you in favor. Surah Al-Ibrahim, ayat number 7. आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है. So dear audience, let's welcome these wonderful kids with a big round of applause as they take the stage. Please तालियों के साथ स्वागत कीजिए. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to Shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير.
Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsineen. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to Shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Huwa Khaliquna, Huwa Raziquna, wa Huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Wow, that was Subhanallah, what a beautiful and meaningful performance. आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए तालियों के साथ स्वागत करें और ये बात बोलने की जरूरत ना पड़े।